کہ تو نے کیا لکھ دیا؟ اگر میں قاسم کو بھیج دیتا ہوں اور قاسم شہید ہو جاتے ہیں تو قیامت تک آپ کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ لوگ آپ کو جانیں گے کیسے؟ حضرت امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اے پروردگار اگر تم مسافر کی دعا قبول کرتا ہے تو حسین آج مسافر بھی ہے، اگر تم مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے تو حسین آج مجاہد بھی ہے، اگر تم غازی کی دعا قبول کرتا ہے تو حسین آج غازی بھی ہے، اگر تم عاشورے کے دن دعا قبول کرتا ہے تو آج یوم عاشورہ بھی ہے، اگر جمعے کے دن کی دعا قبول کرتا ہے تو آج دن جمعہ بھی ہے۔ اے پروردگار میرے بھائی نے میرے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے تو اس کا بدلہ عطا کر دینا، تو اس کا صلہ دے دینا۔ میدان کربلا میں بھی غیب سے ندا آتی ہے، اے حسین جا، تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایک ایسا بیٹا دوں گا جو سارے بندوں کا ولی ہوگا، نام عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ شعر و شاعری کی نظامت کی گلیوں میں گھومتے ہوئے میں آپ تک کچھ دیر کے لیے پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ غوث اعظم کی محفل ہے، ایک بات میں بتا دیتا ہوں، جو مزے لینے کے لیے آئے ہیں جا سکتا۔ میں اس بات کی پرواہ کبھی نہیں کرتا کہ جب میں گفتگو کروں کہ میری واہواہی ہو جائے، ہزاروں کا مجمع ہو۔ آج ہماری قوم اسی میں برباد ہے یا تو تباہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، غوث اعظم کی محفل ہے، خدا کی عزت کی قسم ایمانداری کے ساتھ غوث پاک کی محفل میں کوئی بندہ یہ ارادہ کر کے بیٹھے نا کہ آقا آج تیری بارگاہ میں صرف تیرے خاطر بیٹھا ہوں، میرے دل میں یہ نیک تمنا ہے بس یہ مرادیں پوری کر دے، دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس ایمانداری کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس ایمانداری کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ 5 ہی لوگ بیٹھے مگر ایمانداری سے، بس ذکر کہاں سے کیا جائے، باتیں تو بہت ساری ہیں، اس لیے میں نے آج کا موضوع سخن بنا لیا عظمت غوث اعظم اور اصلاح معاشرہ۔ غوث اعظم کی کرامت ہو، باتیں سن سن کر ہم خوش ہو جائیں اور اس سے کوئی پیغام آنے تو بھیجا، پھر لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ کہ اگر ہمارے نوجوانوں کی اصلاح نہ ہو، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جناب ساجد اقبال صاحب قبلہ کی کارستانیاں ہیں کہ الحمدللہ آپ جب بھی اپنے یہاں کوئی جلسہ سجاتے ہیں تو جہاں تک میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ دل کے ساتھ پڑھنے والے شاعر کا انتخاب، الحمدللہ، ورنہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ پڑھتے پڑھتے سو بھی جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو بھی جا رہے ہیں، مجمع سمجھ رہا ہے کہ یہ دیوانہ ہو گیا، ظالم وہ دیوانہ نہیں، وہ نوٹنکی کرتا ہے، پڑھتے پڑھتے سو بھی جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ایک جملے نکلتے ہیں کہ آپ میرا موڈ بنا دے تو پھر میری شاعری سنیں۔ میں کہتا ہوں نعت نبی پڑھنے کے بعد جب تیرا موڈ نہیں بن رہا ہے تو بھلا اس عوام کا موڈ کیا ہے؟ نعت نبی پڑھے اور موڈ نہ بنے، نبی کی نعت پڑھے اور موڈ نہ بنے، اور پھر کہتے ہو حسان بن ثابت کی سنت ہے، کیا حضرت حسان یہی کہا کرتے تھے صحابیوں سے کہ ایک بار آپ موڈ بنا دیں پھر شاعری سنیں؟ نہیں، الحمدللہ آپ کا ذوق بڑا بہتر ہے، آپ بڑے معیاری لوگ ہیں، غوث اعظم کا کرم ہے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو غوث کی محفل ہے، میری پیاری ایمانداری کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ لیا کرو، یہ غوث پاک کا مجمع ہے، غوث پاک کی محفل ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت شاعر ہندوستان ساجد اقبال صاحب قبلہ سے کہ غوث الورا کی محفل میں آنے کی دور کی بات، سرکار غوث اعظم جب تک یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ میرا نام لے تو بغیر غوث اعظم کے ارادے کے کوئی بندہ ان کا نام تک نہیں لے سکتا، جب بغیر ان کے ارادے کے کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تو بھلا بغیر ان کے ارادے کے ان کی محفل میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟
آتا وہی ہے جسے غوث الاعظم بلاتے ہیں، آتا وہی ہے جس پر غوث الاعظم کا کرم ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، آپ نے بڑا اچھا سنا۔ بس یہ یاد رکھنے کہ اگر غائب و منظر کے کلام آپ کو یاد ہے تو پورے کلام اور پورے نعتیہ شاعری کا ان کا ایک مصرع جو ہے حاصل کلام تھا، حاصل پروگرام تھا۔ بس اسی عنوان پر بھی میری گفتگو ہوگی۔ حضرت نے بڑا خوب پڑھا اور یہی کہا کہ مولا کچھ دے یا نہ دے، دولت دے یا نہ دے، ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے، ہم سب کو سچا مسلمان بنا دے۔ پروگرام کرنے کا حاصل کلام آپ کا یہی ہے، جلسہ کرنے کا حاصل کلام آپ کا یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ کیا پیاری ذرا غور سے سننا، ادب کے ساتھ سماعت کرنا، وہ اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام نبی جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب اللہ کی شان ہے۔ نبی کی نبوت اللہ کی الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، ہر نبی یہ اللہ کی شان ہے اور ولی یہ نبی کی شان ہوتے ہیں۔ غور کرنا، میں نے آپ کو بتا دیا، نبی یہ اللہ کی شان ہے، ولی یہ نبی کی شان ہے۔ جب اتنی بات سمجھ چکے ہو تو اب میں سمجھتا ہوں اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ذرا آپ بول دیں نبی یہ اللہ کی شان، نبی اللہ کی شان اور ولی نبی کی شان، ولی نبی کی شان۔ قاعدہ بن گیا، نبی اللہ کی شان ہے، ولی نبی کی شان ہے، تو جیسا نبی ہوتا ہے اسی رتبے کا اس کی امت میں ولی بھی ہوتا ہے، جس شان کا نبی بھی ہوتا ہے اس شان کا ولی بھی ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، اسی زمین پر آدم بھی آئے، زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، ادریس بھی آئے، شیش بھی آئے، یعقوب بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت دانیال بھی آئے۔ رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اسی خاکدانِ گٹی پر مبعوث فرمایا اور رب نے ہر نبی کو بڑے سے بڑے ولی عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کے قوم میں بھی ولی آئے، حضرت سلیمان کے قوم میں بھی ولی آئے۔ کیا آپ نے حضرت آصف بن برخیہ کی باتیں نہیں سنی؟ حضرت آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت میں ہے، ان کا مقام یہ تھا کہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو سینکڑوں میل کی مسافت سے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر کیا کرتے تھے۔ مگر بتانا یہ ہے کہ ہر نبی یہ اللہ کی شان ہے اور رب نے ہر نبی کو بڑے سے بڑے ولی عطا کر دیا، مگر کسی ایک نبی کو بھی غوث اعظم جیسا ولی نہیں دیا، کسی ایک نبی کو بھی غوث اعظم جیسا ولی نہیں دیا۔ کیوں میرے پیارے کیوں؟ آدم آئے مگر غوث اعظم نہیں ملا، یحییٰ آئے مگر غوث اعظم نہیں ملا، ادریس آئے مگر غوث اعظم نہیں ملا، یوسف آئے مگر غوث اعظم نہیں ملا، دانیال آئے مگر غوث اعظم نہیں ملا، موسیٰ آئے مگر غوث اعظم جیسا ولی نہ پایا، حضرت سلیمان آئے مگر غوث اعظم جیسا ولی نہیں پایا۔ کیوں؟ من بلند توحید کے درس دینے والے سن، جب کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہ ہو سکا، جب کوئی نبی مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا تو بھلا ان کے امت میں کوئی ولی غوث اعظم جیسا کیسے ہوگا؟ ان کی امت میں غوث اعظم جیسا ولی کیسے ہوگا؟ بس آپ سنتے چلے، وقت کے مطابق میری گفتگو ہوگی۔ جب ہر نبی کو رب نے بڑے سے بڑے ولی عطا کر دیا، مگر ہر نبی کو ولی تو دیا مگر کسی ولی کو غوث اعظم جیسا ولی نہیں دیا۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہ ہو سکا۔ جب کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہ ہوا تو بھلا ان کی امت میں کوئی ولی غوث اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا نبی ہوتا ہے اسی شان کا ولی ہوتا ہے۔ ادھر مصطفیٰ جو غوث اعظم کے نانا ہے، نانا ہے سارے نبیوں کے سردار، نواسا ہے سارے ولیوں کے سردار، نانا نبیوں کے سردار، نواسا ولیوں کے
सरदार, मगर गौसे आजम की महफिल में बैठे हो ना, मैं उस गौस की बात कर रहा हूँ। जरा गौर करना, ईद का दिन है, ईद के दिन में जरा गौर करो हमारे और अपने घर का माहौल क्या होता है। घर में बच्चों की खुशी अलग होती है, नौजवान अलग खुश होता है, औरतें अलग खुश होती हैं, बहनें अलग खुशी का माहौल पैदा करती है। घर में हर एक घर में एक खुशी का माहौल होता है। मगर जरा गौर करो, ईमान के हवाले से गौसुल आजम ने कौन सा पैगाम दिया है, कौन सा सबक हमें और आपको दिया है। सरकार गौसुल आजम ईद के दिन आंसू बहा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। क्या आज तक आपने सुना होगा कि ईद के दिन कोई रोता है? आप कहोगे मौलाना ईद के दिन कोई नहीं रोता है। अगर हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है तो दीन की मोहब्बत में नहीं, अगर बेटा रो रहा है तो इसलिए कि मुमकिन हो कि कपड़ा उसके मिजाज के मुआफिक ना हो, अगर बहन रो रही है तो इसलिए हो सकता है कि भाई परदेश में हो, बेटा रो रहा हो तो इसलिए मुमकिन है कि बाप परदेश में हो, बीवी रो रही हो तो इस मोहब्बत में हो सकता है कि शौहर परदेश में हो, घर आया ना हो। मगर दीन की मोहब्बत में ईद के दिन हमारे घरों से रोने की आवाज नहीं आती है। मगर वाह है मेरा गौस, ये कौन किस गौस की बात कर रहा हो? वो गौसुल आजम जिसे दुनिया पीर पीरा बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। वो गौसुल आजम जो मुर्दे को ठोकर मारते तो मुर्दा जिंदा भी हो जाए। वो गौसुल आजम जो चोर को भी कुतुब और अवतार बना दे। वो गौसुल आजम जिनके दर से विलायत की खैरात बढ़ती है। वो गौसुल आजम जो पहचान करते हैं कि हमें वली किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है, उस गौस की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी के साथ सुनो, ईद के दिन गौसुल आजम के आंखों में आंसू है, दाढ़ियां तरबतर हो गई है रो रो करके। मुरीदीन गुलाम सामने आ गए, आप रोते क्यों हैं, आप रोते क्यों हैं? आज तो ईद का दिन है ना, ईद के दिन में तो हमें खुश होना चाहिए। बच्चे भी खुश हैं, घर में औरतें भी खुश हैं, नौजवान भी खुश हैं, मोहल्ले में बच्चों में एक खुशियों की लहर है, हर घर में खुशी की लहर है। फिर आका आप रोते क्यों हो? आज तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ईद ये नेमत है। जब बंदा 30 दिन या 29 दिन रोजे रखता है तो इनाम के तौर पर उसे ईद अदा करता है, तो फिर हमें तो खुश होना चाहिए था। मगर आप रोते क्यों हैं? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, गुलामों याद रखो, अब्दुल कादिर के लिए आज ईद नहीं है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर होगा और कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या कहा? जो रातों दिन खुदा की बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आ रही है? हाँ, आवाज समझ में आ रही? जी लगा के कहे या गौस, और मोहब्बत से कहे या गौस। उस कादिर का पैगाम ये है कि जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पर हो, उस दिन हमारे लिए ईद होगी कि कब्र में जाकर नबी का दीदार हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, जरा गौसुल आजम के महफिल तो सजाते हो, मगर अपने दिल में एक बार ईमान का जायजा भी नहीं लिया करो कि हम मुसलमान है भी कि नहीं है, हमारे दिल में ईमान की हलावत है या नहीं है, हमारे सीने में नबी की मोहब्बत है या नहीं है। इसे भी गौर कर लिया करना। पूरी दुनिया तो ये समझ रही थी कि फिलिस्तीन गुलाम हो चुका है, मगर मैं कहता हूं नौजवानों, फिलिस्तीन गुलाम नहीं हुआ है, फिलिस्तीन तो आजाद हो चुका है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस्राइल के गुलाम हो चुके हैं। ईमान की फ़िज़ा क्या है, कोई गाज़ा वालों से पूछे। ईमान की फ़िज़ा क्या है, कोई गाज़ा वालों से पूछे। जहाँ 5 साल का बच्चा भी रोते रोते कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, ये रब हमारा इम्तहान ले चुका है, ये रब हमारा इम्तहान ले रहा है। ईमान की फ़िज़ा कोई गाज़ा वालों से खुदा के पूछे। गौसुल आज़म का मकाम ये है कभी दुनिया में आए भी नहीं है और पैदाइश से पहले उनकी धूम मची हुई है। आओ मैं एक रवायत पेश करता हूँ। मेराज की रात है, रहमत की बरसात है, बुराक भी साथ है, चले हैं पैगंबर आज़म हज़रत जिब्रील है, बुराक पेश किए हैं। एक रवायत के मुताबिक नफरत के बाद का ये वाक़या है, मगर दोनों रवायतों को मैं सब करता हूँ। अब जरा सुनो, मुस्तफा बुराक या नफरत में सवारी करते जा रहे हैं, जैसे कदम नास को आगे
बढ़ाया, उस वक्त एक रूह हजरत पैगंबर इस्लाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है, सरकार की बारगाह में पेश की जाती है। नबी फरमाते हैं ये किसकी रूह है? रूह से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह, अपने कदम नाज को बुराकिया रफ़रफ़ में रखने से पहले पहले मेरी पुष्ट पे रख दीजिए ना, मेरी पीठ पे रख दीजिए ना। नबी ने कहा तू है कौन और तू बातें कर रहा है, तू चाहता क्या है? मैं अपने कदम तेरे पुष्ट पे क्यों रखूं? उसी रूह से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर हूँ, आपका नवासा अब्दुल कादिर हूँ। हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर आज आप अपने कदम नाज को मेरी रूह पर रख दीजिएगा, दुनिया में जाऊंगा तो दीन का झंडा गाड़ूंगा, दुनिया में जाऊंगा तो आपके कलमे की तबलीग करूंगा, दुनिया में जाऊंगा तो मजहब इस्लाम को मजबूत करूंगा, दुनिया में जाऊंगा तो आपके सुन्नतों को मैं दुनिया में फैलाऊंगा। या रसूल अल्लाह, आप अपने कदम नाज को, अपने कदम मुबारक को मेरी पुष्ट पर रख दीजिए ना। इस कुरान के नफरत में सवार होने से पहले पहले मुझे भी इज्जत बख्श दीजिए ना। मुस्तफा ने उस वक्त कुरान के नफरत में अपने कदम को रखने से पहले पहले गौसुल आजम के पुष्ट मुबारक पे रखते हैं और रख करके ऐलान कर देते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर, जा, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, कल तेरा कदम सारे बच्चों के गर्दन पर होगा, कल तेरा कदम सारे बच्चों के गर्दन पर होगा। तब बरेली के ताजा आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत, हम ये कुरान और सुन्नत मानिए कुफ्र व दलालत, सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, हम सब इमाम अहमद रज़ा खान बरेली के चटाई पर बैठ के लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और ये बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या कबे जिससे हो हिमालय का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है तो जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अभी गौसुल आज़म दुनिया में आए नहीं है और विलादत की धमक मची हुई है, विलादत की महक मची हुई है। गौसुल आज़म के विलादत की बशारत तो मैदान करबला में ही हो चुकी थी। याद करो वो लम्हा, हजरत कासिम की साथ है, हजरत कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, हर कोई शहीद हो चुका है, शहजादे अली अकबर ने भी अपनी जान निछावर कर दी है, अब्बास आलम प्रताप के बाजू भी कट गए हैं, एक खानदान अहले बैत और जान सारे अहले बैत अपनी जान की कुर्बानी लगा रहे हैं इस्लाम को बचाने के लिए। इधर आगे बढ़ते हैं, कासिम कहते हैं बाबा मुझे भी जाने की इजाजत दो ना, मैं भी उधर जाना चाहता हूँ, मैं भी उधर जाना चाहता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि गौसुल आज़म की विलादत की खबर मैदान करबला में भी मिल चुकी थी, मैं समझाना ये चाहता हूँ। हजरत कासिम कहते हैं मुझे भी जाने की इजाजत दो। इमाम हुसैन मेरे इमाम कहते हैं मेरे लाल, मेरे भतीजे, मेरे बेटे, मैं तुझे उधर कैसे भेज दूं? उधर तो जाता है कोई वापस नहीं आता है, तू मेरे भाई हजरत हसन की अकेली निशानी है, अगर मैं तुझे भेज दूंगा तो फिर मेरे भाई हसन की निशानी क़यामत तक के लिए मिट जाएगी, फिर मेरे भाई हसन की नस्ल कैसे चलेगी? क्योंकि अब हजरत कासिम से जो छोटे भाई थे वो नहायत ही छोटे थे, उम्र बहुत कम थी और छोटे बच्चों की उम्र का कोई भरोसा न होता है, इसलिए कहा नहीं तू उधर नहीं जा सकता। हजरत कासिम मायूस हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इतने में उनके दिमाग में ये बात याद आ जाती है कि जब बाबा को जहर दिया गया था और बाबा जब जहर पीने के बाद आखिरी लम्हे में थे, जागने के आलम में थे, उस वक्त बाबा ने एक खत लिखा था और खत लिख करके मुझे दिया था कि बेटा कासिम सुन, ये खत अपने पास रखना, ये खत कभी मत खोलना, ये खत उस वक्त पढ़ना जब तमाम मुसीबतों से ज्यादा तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, जब ऐसी मुसीबत हो कि कयामत भी शर्मिंदा हो जाए, जब कयामत से भी ज्यादा बड़ा मुसीबत तेरे ऊपर आ जाए, उसी वक्त ये खत
खोल करके पढ़ना। हजरत इमाम कासिम कहते हैं अब इससे ज्यादा और बड़ी मुसीबत क्या आएगी कि मेरे खानदान वालों पे पानी भी बंद कर दिया गया है। यहाँ 6 माह का भाई भी तड़प रहा है। चचा अब्बास आलम बरदार के बाजू भी काट लिए गए हैं। हजरत अली अकबर की जवानी भी लूट ली गई है। अब ज्यादा इससे बड़ी मुसीबत और क्या आएगी? करबला से ज्यादा और बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है। हजरत कासिम ने खत खोल करके पढ़ा है तो खत जो ही खोला है उसमें एक मजमून लिखा है। हजरत इमाम हसन की तहरीर है। खत में ये लिखा है कि बेटा कासिम मैं जान रहा हूँ इस वक्त मैदाने करबला में होगा, इस वक्त मैदाने करबला में होगा, मगर कहना है ये मेरे बेटे अपने चचा हजरत मेरे भाई इमाम हुसैन का साथ ना छोड़ना, खत्म से खत्म मिला करके चलना। जब जनवारे चले तो मेरे भाई के सीने पे बार ना लगे, बल्कि मेरी अपनी जगह पर मेरे भाई के सीने की जगह पर तू अपने सीने को पेश करना। अब मेरे भाई का ढाल बन जाना, कहीं मेरे भाई को एहसास ना हो कि काश मेरा बड़ा भाई हसन होता तो आज मेरी मदद करता, काश मेरा बड़ा भाई हसन होता तो आज मेरे साथ जंग करता। हजरत कासिम के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो रुका लेकर इमाम हुसैन के पास जाते हैं, कहते हैं चचा जान आप इजाजत दो या ना दो, मेरे बाबा हसन ने करबला में जाने की इजाजत दे दी है, अब तो हम जंग करेंगे। कहा बात क्या है? उस खत को इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया। इमाम हुसैन ने जो ही खत को पढ़ा है रोने लग गए कि भाई हसन ये तूने क्या लिख दिया? अगर मैं कासिम को भेज देता हूँ और कासिम शहीद हो जाते हैं तो क़यामत तक आपकी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? लोग आपको जानेंगे कैसे? हजरत इमाम हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। परवरदिगार अगर तुम मुसाफिर की दुआ कबूल करता है तो हुसैन आज मुसाफिर भी है, अगर तुम मुजाहिद की दुआ कबूल करता है तो हुसैन आज मुजाहिद भी है, अगर तू गाजी की दुआ कबूल करता है तो हुसैन आज गाजी भी है, अगर तू आशूरे के दिन दुआ कबूल करता है तो आज यौम आशूरा भी है, अगर जुमे के दिन की दुआ कबूल करता है तो आज दिन जुमा भी है। एक परवरदिगार मेरे भाई ने मेरे लिए जो कुर्बानियां पेश की है तू इसका बदला अता कर देना, तू इसका सिला दे देना। मैदाने करबला में भी गायब से निदा आती है, ए हुसैन जा तेरे भाई हसन की नस्ल में एक ऐसा बेटा दूंगा जो सारे बंदों का वली होगा, नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना कि नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। अब जरा गौर करो, मैंने पहले कहा करामतें बहुत है, बातें बहुत है, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ देर में ही, चंद मिनटों के अंदर ही, कुछ घंटों के अंदर ही गौसे पाक की बातें भी सुन लो, मेरी भी इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए, हमारे बच्चों की भी इस्लाह हो जाए। अब जरा गौर करो बगदाद के मेंबर से गौसुल आजम ने क्या खिताब किया। गौसुल आजम फरमाते हैं कदम हाज़िही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है। मेरा ये कदम क्या कहा? बोलिए मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है। ये नहीं कहा कि हर वली के गर्दन पर, हर वली के गर्दन पर है। सिलसिले चिश्त हो, सोहरवर्द हो, नक्शबंद हो, अबुल बुलाई हो, हाफिजी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, नूरी हो, कोई किसी भी सिलसिले से मुंसलिक हो, जितने सिलसिले हक हैं सबके शायख पर गौसुल आजम, सबके गर्दनों पर गौसुल आजम का कदम है। तो ब्रांचेज है, हम ब्रांच वाले, असल फैजान असल शजरा गौसुल आजम का है। मेरा ये कदम हर वली के गर्दन पर है। जिस किसी ने भी बगदाद के मेंबर से जब ये आवाज आई, जो वली जहां कहीं भी था, जिसने सुना गर्दनें झुका दी, जिसने सुना गर्दनें झुका दी, इसलिए कि जो गौसे आजम की इरादत में ना हो वो वली हो नहीं सकता, और अगर कोई वली हो और गौसे आजम के कदम के नीचे आने से इनकार कर दे तो वली रह नहीं सकता।
बने रहने के लिए जरूरी है उसे गौसे आजम के कदम के नीचे रहना होगा, चाहे वो किसी भी सिलसिले से हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले से मुंसलिक हो। मगर मुसलमानों जरा ये बता दो ना, हमने कौन सा खलफशार मचा के रखा है? फैजान तो गौसे आजम से जाती है ना। जितने सिलसिले हक है, चाहे वो पटना शरीफ हो, चाहे वो अबुल उलाई हो, चाहे वो हाफिजी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो नसबी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो नूरी हो, जितने सिलसिले हक हैं सब पर गौसुल आजम का फैजान है। फिर पूरी दीदी आपस में झगड़ा क्यों है? फिर हम दमते क्यों है? जरा गौर करो। कोई कहता है कि नहीं हम रस्मी हैं, कोई कहता है हम बरकाती हैं, कोई कहता है कि हम अबुल उलाई हैं, कोई कहता है कि हम अशरफी हैं, कोई कहता है कि नहीं हम हैं। मुरीदीन झगड़ते क्यों हैं? लड़ता हुआ ये मुरीद है जिसे वजू का तरीका भी नहीं पता। नादान सालिम तू झगड़ रहा है, मोहल्ले में खुराफात मचा रहा है, लोगों में नाचा पैदा कर रहा है, पीरों में बंटवारे कर रहा है, गौसुल आजम के फैजान को तहते और तकिए में डाल रहा है और फिर कहता है कि तुझे ना तो वजू का पता है, ना गुस्ल में कितने फराइज है वो मालूम है। और फिर ये झगड़ा किस बात का है कि हम असली है सबसे बेहतर है, हम बरकाती है सबसे बेहतर है, हम अशरफी है सबसे बेहतर है, जबकि सबके शजरा का सिलसिला गौसुल आजम से मिल रहा है। नजमी बाद में कादरी पहले हो, अशरफी बाद में कादरी पहले हो, चिश्ती बाद में कादरी पहले हो, नूरी बाद में कादरी पहले हो, सबसे पहले कादरी हो। और जो कादरियत से इनकार कर दे ना उसका पीर बेहतर ना उसका पीर बेहतर। जरा बोले ना, मुरीदीन आपस में झगड़ा मचाए हुए हैं, मुरीदीन झगड़ा मचाए हुए हैं कि मेरा पीर सबसे बेहतर है, हम सबसे आला है। अगर गौसुल आजम ने भरोसे में शक हर पीर की मुरीदीन को सामने खड़ा कर दिया और उनके शेख को सामने खड़ा कर दिया और कह दिया देख मैंने तुझे दुनिया में विलायत अता की थी, मगर ये तेरा मुरीद है जो नमाज नहीं पढ़ता। हर शेख को खड़ा कर दिया और कहा देख मैंने तुझे दुनिया में विलायत दी थी, विलायत की खैरात बांटी थी, मगर ये तेरा मुरीद है जो गजेड़ी था, भगेड़ी था, शराबी था। तो बोल जरा अपने पीर को तू रुसवा करेगा या नहीं? बोलिए ना ईमानदारी से। हक बात बोलने की मुझे बड़ी खुजली होती है, बहुत अच्छी खुशी। हक बात बोलने से मैं गुरेज़ता नहीं हूँ। बोल हम अपने पीर को रुसवा करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, करेंगे ना, बोलिए करेंगे ना। तो जरा बताओ ना मेरे प्यारे, हम अपने पीरों को रुसवा कर रहे हैं। मेरे नौजवानों सुन, बल्कि आप तालीम की तरफ आ जाओ। मैं थोड़ी देर आपके जहन को अपने तरफ लाना चाहता हूँ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आपस में झगड़े मत मचाओ, आपस में फसाद मत मचाओ। जिनके शजरे हक हैं उनके पीर भी हक हैं, वो भी हक हैं, चूंकि सबका सिलसिला गौसुल आजम से जाके मिलता है। मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमने अपने शेख को नजराना 30 साल तक दिया है। कोई रज़वी हो उसने भी अपने शेख को 30 साल तक नजराना पेश किया, कोई चिश्ती हो उसने भी 30 साल तक नजराना पेश किया, कोई बरकाती हो उसने भी 30 साल तक अपने पीर को नजराना पेश किया है। बात हक है, मोहब्बतों के नजराना तो पेश कर दिया, मगर हर कोई चाहे वो रज़वी हो, चाहे वो बरकाती हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो नूरी हो, चाहे वो अबुल उलाई हो, कभी आपने अपने शेख से सवाल किया हुजूर ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप दादा ने आपके खानका को 30 साल तक डोनेट किया है, मगर ये मेरे बच्चे जाएंगे कहाँ? अब हमें रहनुमाई कीजिए, हमारे बच्चे को तालीम की जरूरत है, हमारे बच्चे को मदरसा चाहिए, ताकि बच्चा पढ़कर हाफिज़ कुरान बन जाए। हमारे लिए रास्ता बनाइए हुजूर, हमारे लिए कोई तरीका बताइए, हमारे लिए स्कूल चाहिए ताकि बच्चे पढ़ करके डिग्री भी हासिल करें, बच्चा हमारा हाफिज़ कुरान भी हो और डॉक्टर भी हो। हमारे लिए कोई ऐसा तरीका बताइए। मुरीद लड़ते रह गए पीर साहब के चक्कर में। क्या आपने कभी अपने पीर से संबंध किया, चाहे वो किसी भी सिलसिला से? हुजूर हमें तालीम की जरूरत है नहीं, आका बड़ी परेशान है, तालीम दीजिए। बस कौम का मिजाज बन चुका है,
نہیں اپنے بزرگوں سے دعائیں لو، سر پہ ہاتھ رکھو اور ان سے باتیں سیکھو تو تعلیم کی باتیں سیکھو، ایمان کی باتیں سیکھو، ایمان کی باتیں سیکھو، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھو تاکہ عقیدہ بھی بن جائے، ایمان بھی بن جائے۔ پتا ہے جب رسول اعظم نے کہا تھا قدم یہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اس وقت جو ولی جہاں کہیں بھی تھا سب نے اپنے گردنیں جھکا دی۔ خراسان کی پہاڑی پر ہند سلطان الہند سیدنا حضرت غریب نواز عبادت کر رہے تھے، عالم کشت میں تھے، جب یہ آواز بغداد سے آئی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے غوث آپ کا قدم صرف معین الدین کے کاندھے پر ہی نہیں بلکہ سر اور آنکھوں پر ہے۔ تب بریلی کے مفتی اعظم نے کہا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم سے۔ یہ سلطان الہند غریب نواز نے کہا جو ولی جہاں کہیں بھی تھا سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت ایک ولی تھا بغداد کے کسی دور کے علاقے میں، اسے اپنی ولایت کا گھمنڈ تھا، مریدین بھی 500 کی تعداد میں تھے۔ اس نے من ہی من میں کہا نہ میں بھی تو ولی ہوں، آپ کا قدم میرے کاندھے پہ، میں بھی تو ولی ہوں۔ وہ غوث اعظم کی ذات ہے۔ بغداد سے جب انہوں نے کہا اور جب اس نے اپنے کاندھے پر غوث اعظم کا قدم دینے سے انکار کر دیا تو ولایت تو گئی۔ غوث اعظم نے کہا کہ جس کا قدم میرا قدم جس کے گردن پر نہیں تو اس کے کاندھے پر خنجیر کا قدم، اس کے کاندھے پر خنجیر کا قدم ہو۔ غوث اعظم نے جلال میں آ کر یہ کہہ دیا۔ اب کچھ دیر کے بعد اس ولی کی ولایت تو ختم ہو گئی، اسے احساس تک نہ ہوا، اسے پتہ تک نہ چلا ولایت کیوں چھین لی گئی تھی۔ پتا ہے جبکہ وہ ولی تھے غوث اعظم کا قدم اپنے کاندھے پہ لینے سے انکار کیا تھا۔ اب مریدین کے ساتھ چلے ہیں بیت المقدس کی طرف، زیارت حرمین شریفین کے لیے نکلے ہیں کہ چلو مکہ مدینہ دیکھا ہے۔ 500 مریدین کا چل رہا ہے، ایک ساتھ مریدین ساتھ چل رہے ہیں، مریدوں کا بھی عالم، اتنی بھیڑ ہے، بھیڑ میں چلے جا رہے ہیں، ایک ساتھ کہیں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، مگر انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ میرے دل سے ولایت نکال دی گئی ہے، ہمارے اندر سے ولایت چھین لی گئی ہے، انہیں احساس اب تک نہیں ہوا ہے۔ مریدوں کے ساتھ چلتے چلتے جب ایک جنگل میں قیام کیے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جھوپڑی ہے، اسی جھوپڑی میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد اس ولی کو محبت ہو جاتی ہے، کیوں پتا ہے چونکہ دل سے ولایت تو نکال دی گئی تھی نا۔ جب ولایت ختم ہو گئی تو اب پردے پہ ہٹ چکے تھے، ان کی آنکھوں میں پردے پڑ چکے تھے، ورنہ جن کی آنکھوں میں نگاہ مصطفیٰ ہو، جن کی آنکھوں میں غوث اعظم کا جلوہ ہو، وہ دنیا کی محبت میں کبھی پڑ نہیں سکتا ہے، مگر غوث اعظم کا قدم اپنے کاندھے میں لینے سے انکار کیا تھا۔ اب ہوا جو کہ لڑکی کو دیکھ کر اسے محبت ہو جاتی ہے، اسے عشق ہو چکا ہے، جا کر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ میرے باپ سے بات کرو۔ جب اس کے باپ سے بات کی گئی تو باپ تھا عیسائی مذہب عیسائیت کا ماننے والا۔ وہ باپ کہتا ہے تو میری لڑکی سے محبت کرتا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو میری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا میرے کچھ شرطیں ہیں، اسے مان لو گے تب میں یقین کروں گا، ورنہ تجھ پر دیسی ہے، میں تجھ پر کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ ممکن ہے کہ آج شادی کر لو کل بھاگ جاؤ گے، میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ کوئی کہتے ہیں بتاؤ کیا آزمانا چاہتے ہو؟ وہ پادری جو عیسائی تھا وہ عیسائی کہتا ہے کہ آزمانا یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی دن کے اجالے میں دن کے وقت صبح کے وقت خنزیروں کو لے کر جنگل میں جا کر چرایا کرتی ہے، اسے جا کر تو بھی ساتھ میں چرایا کر، تب میں جانوں گا کہ تو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ وہ عشق میں اندھا ہو چکا تھا، عشق میں وہ پاگل ہو چکا تھا، وہ لڑکی کے فریب میں آ چکا تھا، چونکہ ولایت جو چھین لی گئی تھی وہ لڑکی کے محبت میں اقرار کر لیتا ہے کہ چلو میں تیرے بیٹی کے ساتھ خنزیر کو چرانے بھی جاؤں گا۔ جو ہی چرانے کے لیے نکلتا ہے سارے مریدین بھاگ جاتے ہیں کہ اللہ
अल्लाह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मुरीदीन घटने लग गए, अरे ये तो मेरा शायख था, ये तो खिंजीर चराने के लिए निकला है, हम इसे अपना शायख कैसे माने। लोगों ने भीड़ इकट्ठी चली गई। थोड़ी देर के बाद लड़की के गोद में एक खिंजीर का बच्चा रहता है, जिसे वो अपने कंधे पे लेकर चलती है। लड़की कहती है मुझसे मोहब्बत करते हो, कहा हाँ हाँ, तो किसी खिंजीर को अपने कंधे पे रख लो, तब मैं जानूंगा कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। उस वली ने, उस शख्स ने खिंजीर के बच्चे को अपने कंधे पे उठाकर रख लिया। गौसे आज़म ने तो यही कहा था कि जिसका कदम, जिसके कदम, जिसके गर्दन पर मेरा कदम नहीं, उसके कंधे पर खिंजीर का कदम हो। उसने अपने कंधे पे भी रख लिया है। मुरीदीन भागते चले जा रहे हैं। अब जो ही आगे बढ़ा, वापस आया तो अब वो ईसाई कहता है, लड़की का बाप कहता है, अगर तू मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है तो आखिरी शर्त मान लो। कहा आखिरी शर्त क्या है? कहा देख इधर खिंजीर का गोश्त है और उधर शराब है, इस गोश्त को उठा के खाओ और इस शराब के बोतल तू भी पियो और मज़हब इस्लाम को छोड़कर तू ईसाई भी बन जा, तब मैं तुझ पर यकीन करूंगा, तब मेरी बेटी से शादी कर लेना। सब मुरीद तो भाग चुके थे, मगर दो बच्चे थे वो उसी जगह ठहर गए थे। उनका दिल रो रहा था, जो पक्के सच्चे मुरीद थे। जब उन्होंने ये देखा, दुआ के लिए हाथ उठा दी, हाथ को उठा दिया है। अब वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ये माजरा क्या है। जहाँ तक ये खिंजीर का कदम इसके गर्दन पे आ गया तो चलो ये हराम हुआ, चलो ये नाजायज हुआ, मगर ये तो अब मुर्तद होने जा रहा है। ये तो लड़की के इश्क में ईमान को बेच रहा है, ईमान का सौदा कर रहा है। अब इसे बचावेगा कौन? दोनों मुरीद दुआ के हाथ उठा लेते हैं। ए मेरे पीरे पीरा, ए मेरे बड़े पीर, ए दुनिया के दस्तगीर, ए सैयदना शाइख अब्दुल कादिर जिलानी, मुरीदों के रखवाले सैयदना शाइख या गौस अल मदद, मेरी मदद कीजिए, हमारे पीर को मुर्तद होने से बचा लीजिए। आज ये अपना ईमान खो बैठेगा, उसे बचा लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जब ये तौबा कर लेगा तो आपकी बारगाह में पकड़ करके लाऊंगा। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा मुरीद, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला मशरिक में रहकर मुझे पुकारेगा और मैं मगरिब में रहूंगा तो भी उसकी मदद के लिए मैं पहुंच जाता हूँ, तो भी मैं उसकी मदद किया करता हूँ। इधर दोनों मुरीदों ने दुआ के लिए हाथ उठाया। सरकार करम कीजिए, गौसुल आज़म का फैज़ान जारी हुआ, निगाहों से पर्दा हट गया। जैसे पर्दा हटा है तो शराब को भी फेंका है, उस गोश्त को भी फेंका है, दिल कांप उठा है। क्या मैं क्या करने जा रहा था? मैं तो ईमान बेचने जा रहा था। वो सर रख कर रोने लगा। मुरीदों ने हाथ पकड़ा, कहा नादान, चल सैयदना शाइख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में तुमने गुस्ताखी की थी, जाकर बैठ गया। अब सरकार जलाल में है, बात करने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही है। बात करे तो कौन करे, बोले तो कौन बोले। जब ये कदमों में रहकर गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा, गौसुल आज़म ने फिर इशारा किया और सरकार गौसुल आज़म ने कहा, जा, मैंने तुझे माफ किया, रब ने तुझे माफ कर देगा। इतना कहना था कि वापस मिलाया, फिर वापस मिलाया, फिर मिल गई। मेरे गौस के चाहने वाले दीवानों, गौसुल आज़म से पक्के सच्चे मोहब्बत करने वाले नौजवानों, वो जज्बा हमें कब आएगा? वो ईमान की बेदारी हमें कब आएगी? वो ईमान की बेदारी कब हमें आएगी? हमारे नौजवान कब समझेंगे? हमारे बच्चे कब समझेंगे? जरा गौर करो ना, जिस उम्र में फिलिस्तीन की बच्चियां बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रही है, उस उम्र में हमारे घर की बच्चियां ट्विटर पर रील और फेसबुक में वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। ये हमारे घरों का हाल है, ये हमारे घरों का हाल है। रात को जब फिलिस्तीन की बच्चियां सोती है ना तो वो हिजाब में सोती है। जब उनसे पूछा गया कि बहन तू हिजाब पहन करके बुर्के में अपने बिल्कुल अपने जिस्म को ज़ेबो तन करके ढक करके क्यों सोती हो, वो कहती है पता नहीं रात के अंधेरे में कब बमबारी हो जाए और मेरी मौत हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जब सबका सुख का जब उजाला निकले तो जब अखबार में रिपोर्टर आए तो मेरा जिस्म खुला रहे और उसी हाल में पूरी दुनिया मुझे देखे। ये मेरी खैरतें, ये मेरी ईमान को गवारा नहीं करती है, ये मेरी खैरात को गवारा नहीं करती है। जरा और मेरी बहन बेटियों, फिलिस्तीन के बच्चों से सबक हासिल करो कि नबी ने तुझे दुनिया में क्यों बनाया। और फातिमा की शहजादियों, जरा और करो, जिस फातिमा से तुम
मोहब्बत करती है, उन्होंने कौन सा किरदार पेश किया और हम कौन सा किरदार पेश कर रहे हैं। हमारा नौजवान कहता है कि मौला हमें कोई सलाहुद्दीन बिच्चू भी भेज दे, हमारे घर में सलाहुद्दीन बिच्चू भी जैसा कोई पैदा क्यों नहीं होता, मोहम्मद बिन कासिम जैसा कोई पैदा क्यों नहीं होता, तारीख इब्न ज़ियाद जैसा कोई क्यों पैदा नहीं होता। जरा बता दो कौम के नौजवानों, क्या हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी गांजा पीने वाले के घर पैदा होंगे, शराब पीने वाले के घर पैदा होंगे, बेनमाजी के घर पैदा होंगे, डीजे बजाने वाले और शादियों में डांस करने वाले के घर पैदा होंगे। मेरे नौजवानों, हमने कौम का रुपया बहुत बर्बाद किया है। अगर गांव में एक साल में 10 शादियां हो तो जरा गौर करना, एक इंसान डीजे बजाता है 20,000 का, गांव में 10 शादियां हो तो हम आपने 2 लाख रुपया बर्बाद कर दिया, जिसका कोई फायदा नहीं। 20,000 का बाजा बजाया, 10 से 10 शादियां हुई तो जरा 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी एक साल में नॉर्मल फिगर किया जाए तो 2 लाख हमने बर्बाद किया। और अगर उसी 2 लाख को जमा कर लेते 5 साल तक हमारे पास एक 10 लाख की मोटी रकम हो जाती, जिस 10 लाख से स्कूल को अपना बनाता, कॉलेज को अपना बनाता, मदरसा तेरा होगा, न किसी के आगे तलवे चाचनी होती, न किसी को डोनेट करने की जरूरत पड़ती, न किसी को भीख मांगने की जरूरत पड़ती। एक साल में 2 लाख कोई नहीं बर्बाद किया था, उसी को 5 साल तक जमा कर देते ना। इस नियत से तो बताओ आज हमारा स्कूल अपना होता, मदरसा अपना होता, कॉलेज अपना होता, बच्चा अपना पढ़ता। मगर यहाँ कहता है कि मेरे घर सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं पैदा होते। सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार आपने पढ़ा है, गौसुल आज़म की महफिल है, मगर नौजवानों सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार देख लो, खुदा की इज्जत की कसम से बदल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके ईमान में हलावत ना आए और आपके अंदर जज्बा ना बेदार हो तो यकीनन आप तौबा करें, दिन भर में 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें ताकि दिल में नूरानियत पैदा हो जाए। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी थी, मगर पता है किसी एक जंग में भी उसे शिकस्त नहीं हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जब उनके कुर्ते को खोला जाता था तो उनके जिस्म पर कोई ऐसी जगह बाकी ना थी जहाँ पर तीर का निशान या पर्ची का निशान या भाले का निशान या तलवार का निशान ना हो, यानी एक बारिश भी उनके पीठ में जगह बाकी ना थी कि जहाँ पर तीर या पर्ची या भाले का निशान ना हो। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़ात है। दुनिया समझती है कि हक की बुनियाद पर अगर हम आवाज उठाएंगे तो लोग हमारा कत्ल कर देंगे, अगर हम हक बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे। याद रखो, अगर जंग में मौत होनी होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी 100 से ज़्यादा जंग लड़े, मगर जंग में उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि बिस्तर पे उनका इंतकाल होता है। जो हजारों हजार दुश्मनों के बीच तलवारें चलाते रहे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग पे नहीं मारे गए, बिस्तर पे उनकी मौत होती है। हमारा नौजवान समझता है कि अगर हम हक बात बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। नादान सुन, हक बोलना तेरा अधिकार है, ये तो नबी की सुन्नत है, ये तो खुदा की बातें हैं, हक बातें बोलना। उस सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर रहा हो। ईसाइयों के कीले को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुहासरा कर दिया है, ईसाई के कीले को घेर लिया है। अब ईसाई परेशान है, 3 दिन तक मुहासरा किया। ईसाई जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी से हम जीत नहीं पाएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी से हम जंग नहीं लड़ पाएंगे, अगर हम आते हैं तो हम मारे जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब कैसे हराया जाए। तमाम पादरियों को इकट्ठा किया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुलाया गया और ईसाइयों ने ये बात रखी, सलाहुद्दीन मुझे ये किला चाहिए, कहा हाँ। यहाँ की हुकूमत चाहिए, कहा हाँ। यहाँ की दौलत चाहिए, कहा हाँ। बस मुझे एक बात करनी है कि हम तुझसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तेरे मुकाबले में तलवार नहीं उठाना चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, फिर तुम चाहते क्या हो। तमाम ईसाइयों ने कहा बस एक काम आपको करना है, किले के अंदर जो बाजार है, इस बाजार के दरवाजे से लेकर बाजार के उस दरवाजे तक तुझे बस गुजर जाना है अपने फौजियों को लेकर। अगर तू गुजर गया तो किला तेरा हो गया, हुकूमत तेरा हो गया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शर्त मान ली है, मगर शर्त तो मान ली, मगर रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रो रहे हैं खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार इनकी कौन सी चाल है। अगर तलवार उठाते तो मुमकिन है कि लड़ना आसान था, बर्छियां उठाते तो लड़ना आसान था, तीर दिखाते तो लड़ना आसान था,
मौला ये कौन सी बात हो गई, हमें सिर्फ गुजरना है मौला, हमारी इज्जत की लाज रख लेना, सुन्नत मुस्तफा की लाज रख लेना। रात भर सुल्तान पर चुपी रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इधर ईसाइयों ने अपना एक बैकग्राउंड तैयार कर लिया कि मुसलमानों को हराना कैसे है। ईसाइयों के पादरियों ने एक मशवरा दे दिया, उसी मशवरा पे अमल कर लिया। अब जब सुबह की आज़ान हुई है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम मुजाहिदों के साथ फजर की नमाज पढ़ी है। अब ऐलान हो गया कि चलो हमें बाजार के इस रास्ते से दूसरे रास्ते तक बस निकल जाना है, हमारी फतह हो जाएगी, किला हमारा हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे कोई 18 साल का नौजवान है, कोई 20 साल का नौजवान है, कोई 21 साल का नौजवान है। नौजवान कौन है? जिस उम्र में हमारे बच्चे क्या से क्या करते हैं, 20 साल का नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे इस्लाम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए बेदार है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े को आगे लेकर आते हैं, किला का दरवाजा खुलता है, चूही खुलता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, जमीन में देखते हैं और दहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं, दाढ़ियां तरबतर हो जाती है। हजरत मुजाहिदीन भी सब परेशान हो गए। ए सुल्तान, आज तक आपको किसी जंग में इतना मायूस और ऐसा नीडर देखा, मगर आज तक आपको रोते नहीं देखा। आप तो बहादुर हैं, मगर आज आप इन ईसाइयों के आगे रो रहे हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बाजार की तरफ रुख किया है तो क्या देखते हैं? ईसाइयों ने 16 से 18 साल की खूबसूरत लड़कियों को बगैर कपड़ा के बाजार में तनहा खड़ा कर दिया है, जमीन पर दौलतें बिछा दी है, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान के ईमान को खरीदना है या तो दौलत से खरीदो, अगर दौलत से ना बिके तो हुस्न के बाजारों से खरीद लो। लड़कियों को भी खड़ा कर दिया। 16 से 18 साल की तमाम ईसाइयों की जितनी बेटियां थी, जितनी खूबसूरत लड़कियां थी उस बाजार की, सबको बगैर कपड़ा के खड़ा कर दिया। मेरे नौजवानों जरा गौर करो, हम कहते हैं कि नबी की सुन्नतों पे हम चलते हैं, मेरे घर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। मेरे नौजवानों, रास्तों में जब चलते हैं तो हमारी निगाहें कैसी होती है, रास्तों में चलते हैं तो हम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं, बल्कि गैर महरमों को देख करके भद्दी भद्दी गाली या भद्दी भद्दी बातें या भद्दी कॉमेंट हम करते हैं। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे आगे कौन सी किसकी बेटी जा रही है, उसे पूरा भरा कर बोल बोल के उसे जरा मस्खरा ले लिया जाए। हमारा नौजवान ये समझता है। आओ सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार देखो, जब उसके ईमान को खरीदने की कोशिश की गई, जमीन पे दौलत बिछा दी गई, लड़कियों की लाइन लगा दी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने मुजाहिदीन से कहते हैं, मुजाहिदों तैयार हो जाओ, आज लड़ाई तलवार से नहीं है, आज हथियार नहीं उठानी है, आज तीरों की लड़ाई नहीं है। कहा करना क्या है? कहा नबी के सुन्नत को जिंदा कर लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेंगे। नबी के सुन्नत को जिंदा करो। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा याद करो मेरे मुस्तफा ने क्या कहा था कि जब बाजारों में तू दाखिल हो तो जितनी जल्दी दाखिल हो उतनी जल्दी निकल जा और तेरी निगाहें नीचे रहे, क्योंकि मुनाफिक बाजारों में ज्यादा वक्त देते हैं, अहले ईमान बाजार में अपना टाइम पास नहीं करते हैं। इसलिए मेरे मुजाहिदीन सुन, नबी का जो फरमान है कि निगाहें नीचे कर लो और दुरूद पढ़ते हुए निकल जाओ। खुदा की इज्जत की कसम, 18 साल का जवान पीछे खड़ा है, 21 साल का जवान पीछे खड़ा है, 22 साल का जवानी पे डहडहाती हुई खूबसूरत चेहरा लेकर मुजाहिदीन पीछे खड़े हैं। मगर जब बाजार में दाखिल हुए हैं तो किसी ने अपनी निगाह ना उठाई, दौलत को भी ठोकर मान दिया, हुस्न को भी ठोकरें मान दिया और तमाम मुजाहिदीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ बाजार के इस दरवाजे से जब उस दरवाजे से पास कर गए, तमाम ईसाइयों ने कदमों में गिरकर कहा, हे सलाहुद्दीन, हकीकत में तू नबी का सच्चा गुलाम है, ले आज से ये किले के हुकूमत का मालिक तू है। जरा गौर कर, किले की हुकूमत की चाबी दे दी गई। कहा हकीकत में तू नबी का वफादार है। कहा सलाहुद्दीन, अब जाते कहाँ हो? जाते जाते ये राज तो बता दो ना।
हमने इतनी खूबसूरत लड़कियों को तेरे आगे खड़ा किया मगर तू निगाह उठा करके भी नहीं देखा। दौलत तेरे आगे बिछाती फिर भी निगाह उठा करके नहीं देखा। इसका राज तो बता दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नादान जिसकी निगाहों में मुस्तफा का जलवा बसता हो, जिसकी निगाहों में नबी का हुस्न बैठ चुका हो, वो दुनियावी हुस्न को देख करके क्या करेगा। ईसाइयों ने कहा तो सुन अब वैसे मत जा, अरे जाओ नबी के गुलाम का किरदार का ये आलम ये है तो मदीने वाले मुस्तफा के किरदार का आलम क्या होगा। मुझे भी कलमा पढ़ाकर नबी के उम्मती में शामिल करते तो गुलाम मुस्तफा कैसे हुआ करते थे कि खैर भी देख ले तो उसे नबी अल्लाह याद आ जाए, खैर भी देख ले तो उसे नबी का कलमा याद आ जाए। मगर जरा गौर करो आज हमने कैसा किरदार पेश किया है कि दुनिया हमें आतंकवाद कहती है, दुनिया हमें टेररिस्ट के नाम से जानती है, क्योंकि हमने अपने किरदार को पैरों तले रौंद दिया है। नबी के सुन्नतों को पैरों तले हमने रौंदना शुरू किया है। गौसे आजम के फरमान को हमने पैरों तले रखा है। ए मेरे प्यारे मैं बारहा करता हूँ कामयाब होना चाहते हो तो गौसे आजम के तालीमात को पढ़ो, बुजुर्गों की तालीम को पढ़ो। इसलिए कि कुरान का जब नज़ूल होता है तो सबसे पहले यही हुक्म दिया जाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कि तू पढ़। अगर कामयाब होना चाहते हो तो एजुकेशन की तरफ पलटाओ, तालीम की तरफ पलटाओ। मगर हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो पढ़ेंगे कैसे। रात के 3 बजे कभी सड़कों पे जाके देख, जब सड़कों पे आप गुजरोगे तो उनके बच्चे 3 बजे भोर उठ करके, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे ठंडे का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे मौसम कोई भी हो, उनके शहरों के बच्चे 3 बजे उठ करके 2 घंटे तक वो सड़कों में दौड़ते हैं। 2 घंटे दौड़ने के बाद वो किताब लेकर के बैठते हैं। क्यों पता है उनके बच्चों में से किसी को IAS बनना है, किसी को IPS बनना है, किसी को दारोगा बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो किसी को कोई और ओहदा लेना है। वो 3 बजे उठ करके दौड़ता है, फिर पढ़ता है, तब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए जाता है। हमारा बच्चा रात भर फ्री फायर या PUBG में बिजी रहता है। वो 3 बजे उठ करके कहाँ से उठेगा, भला वो पढ़ेगा क्या और देखेगा क्या। वो टाइम पास करने के लिए स्कूल जाता है। बाप को भी औकात नहीं है, मानने वाले को भी औकात नहीं है कि हम अपने बच्चों से हिसाब ले सके, अपनी बेटियों से हिसाब ले सके। बेटियां अपने ईमान का सौदा कर रही है, इर्तिकाद का शिकार हो रही है। बेटियां धर्म बदल बदल कर कभी पंडित के साथ, कभी पुजारी के साथ, कभी किसी दलित के साथ बात के साथ कर रही है। ये फेसबुक ने इतना बुराई मचा रखा है कि लड़की होती है झारखंड के, लड़का होता है किसी और स्टेट का, लड़का गैर मजहब का है, लड़की मुसलमान मजहब की मानने वाली है। फेसबुक में अफेयर हुआ, दोनों आपस में ताल्लुकात बनाए। कुछ दिनों के बाद नतीजा ये निकलता है कि लड़की को फला जगह पर मर्डर कर दिया गया, लड़की को मार दिया गया। अब न्यूज़ वाले जो ही चलाते हैं, इधर से हमारा मुसलमान भाई कमेंट करता है कि लड़की को इंसाफ चाहिए, लड़की को इंसाफ चाहिए। उसने कत्ल क्यों किया, काहे का इंसाफ चाहिए। जो दुनिया मुस्तफा को बेच कर गैरों के साथ चली जाए और नबी के ईमान का सौदा कर दे, उसका हश्र यही होने वाला है, उसका हश्र यही होने वाला है। फिर इंसाफ की बात करते हो, किस बात की इंसाफ चाहिए। इसलिए गैरत ईमानी पैदा करो अपने अंदर, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, बच्चों को इस्लामी माहौल में लेकर के आओ, कौम की इस्लाह करो, कौम के लिए दर्द पैदा करो, अपने पूंजी को मजबूत करो। फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पर हर कमेटी को मजबूत होना चाहिए ताकि अपने मोहल्ले में किसी के साथ आपदा में या कोई घटना आ जाए तो जब आपके पास पूंजी रहेगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत रहेगा तब आप बच्चों को अच्छा पढ़ा भी सकते हो, कौम की भी रहनुमाई कर सकती हो। इसलिए खुदा का मेरे प्यारे गौसुल आज़म के फरमान पे चलो, इधर उधर अपने रुपयों और पैसों को बर्बाद मत करो, लेकिन कमेटी को मजबूत बनाओ, खुद भी मजबूत हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। हाफिज़ मिल्लत कहते हैं इत्तेहाद में जिंदगी है, इख्तिलाफ में मौत है। इख्तिलाफ मत रखो, तमाम लोगों पर गौसुल आज़म का फैज़ान जारी है, वो गौसुल आज़म के साथ है। इसलिए उस पर पीर की बारगाह है, जितना दिल करे खिलाफ अक़ीदत पेश करो, हर मुसीबत पर उन्हें पुकारा करो, नमाज पढ़ा करो। गौसुल आज़म बेपनाह अपने मुरीदीन से और अपने मानने वालों से मोहब्बत किया करते थे। इसलिए उनकी मोहब्बत की खैरात चाहते हो
تو پھر غوث اعظم کے فرمان کے مطابق کھڑے اتر جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آخری دو جملے اور میری تقریر ختم۔ میرے پیارے، آپ یہ سمجھتے ہو ہمیں 10 سال کے بعد مرنا ہے، 11 سال کے بعد مرنا ہے۔ خدا نہ کرے کہ آج کی رات کوئی کچھ کہہ دے، ہم اپنی زبان سے کچھ بول دیں، سینے سے ایمان نکل جائے اور کل آپ کی موت ہو جائے تو ذرا غور کرو، تو دنیا تو یہ سمجھے گی، محلے والا تو یہ سمجھے گا کہ مسلمان کا جنازہ ہے، مگر قبر میں جانے کے بعد تو فیصلہ ہو جائے گا نہ پیارے۔ وہاں پر نہ باپ حساب دے گا نہ ماں حساب دے گی، آپ کے ایمان کے بارے میں سوال و جواب آپ سے کیا جائے گا۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کر لو، ایمان پختہ بنا لو، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ، نبی کی سنتوں کو عام کرو، ایجوکیشن کو عام کرو، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ وقت بہت ہو چلا ہے، ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ مجھ فقیر سے آمدنی سے ہمارے بولنے میں کوئی خطا یا سبقت لسانی ہوئی ہوگی تو صرف دل سے اسی منبر نور پر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا غوث الاعظم المدد، یا غوث الاعظم المدد۔ السلام علیکم۔